So, we'll be talking about the chapter called bonding, and we initiate with it. When we term bonding is joining, and whenever we talk about the joining of any two things, not necessarily the chemicals, anything that is due to some attractive force. So whenever there is a bond formed between any two species, it is due to the attractive force between the species. Fine. This attractive force could be strong, could be weak, and therefore this join also could be strong or weak. So that is what we refer to as a bond. The join between any two chemical species, that is atoms, molecules or ions, is termed a chemical bond. Fine. तो ये हमने एक definition दी, chemical bond. अब जब हम chemical bond की बात करते हैं, then in that case we have certain very simple things to be understood. हमारे पास chemistry के अंदर as such कुछ strong bonds हैं, कुछ weak bonds हैं. There are bonds between the atoms, there are bonds between the molecules, and there are the bonds between the ions. तो जब हम chemical bonds की बात करते हैं, chemical substances की बात करते हैं, then in that case जो सबसे पहली चीज है, जो सबसे simple bonds, simple चीजें हैं, उनकी बात करते हैं. Fine. तो सबसे पहले हम बात करेंगे a thing called the ionic bond. Heard of it? Ionic bond is the easiest to explain. It's the simplest to explain, understand. Ionic bond is an attractive force between oppositely charged ions. ठीक है? अब इस ionic bond को electrovalent bond भी कहा जाता है. और एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, that is what we do as the ionic bond. A simple, sober definition. अब यहाँ पे जब हम इस ionic bond की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास let us say सोडियम आयन. जब हम इस सोडियम आयन की बात करते हैं, then in that case this is a simple positive charge. अब अगर यहाँ पर कोई भी स्पीशीज के आसपास आती है, नेगेटिव चार्जेस के पास आते हैं, then in that case this particular ion is going to create an entire positive field around it, so that all the negative charges from any direction are going to be attracted towards it. How many negative ions get accommodated around sodium is going to depend on the relative size of sodium ion and the negative ion. Negative ion अगर छोटा होगा, then in that case more negative ions can be arranged. Negative ion अगर बड़ा होगा तो less negative ions can be arranged. In fact, best arrangement is obtained when the negative and positive have very similar sizes. क्योंकि otherwise negative positive के आसपास अगर negative छोटा तो बहुत ज़्यादा arrange हो सकते हैं, लेकिन negative के आसपास positive arrange नहीं हो पाएगा. And one thing has to be followed throughout bonding, throughout nature, and that is the entire structure overall has to be electrically neutral. हम कभी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं ले सकते जो कहीं से भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कहीं पर भी एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता. और इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत ही सिंपल सा रीजन. अगर मान लीजिए 1 मोल चार्ज, अगर हमारे पास मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्पीशी है, अगर जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड अगर 1 मोल हमारे पास है, 1 मोल सोडियम क्लोराइड, और हमारे पास समहाउ पॉजिटिव या नेगेटिव आयन एक्सेस में होंगे, let us take to the tune of let's say 1 in 1 lakh. ठीक है, 1 in 1 lakh कर दो या 1 in 1000 कर दो. अगर मैं 1 in 1000 की बात करता हूँ, then in that case it is going to lead to have 0.001 mole charges. 0.001 mole charges is going to be something like 0.001 Faraday charges.
and 0.001 Faraday charge is something like 96.5 Coulomb charge. हमारे पास जो यहाँ पे आयन्स है सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज आयन्स हैं, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दे तो बी वेरी क्लियर, हर आयन दूसरे हर आयन को रिपेल करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब कि जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम जरूर होता चला जाएगा पर कभी भी जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। तो यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक भी आयन, हर आयन दूसरे आयन को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो अगर मेरे पास कोई भी चार्ज एक्सेस में हो गया, then that is इतना चार्ज हर आयन एक दूसरे को रिपेल करेगा। Now this force between the ions, between the positive ion is so strong कि अगर हम सिर्फ एक कूलम चार्ज की बात करें तो जिस व्यक्ति ने एक कूलम चार्ज को डिफाइन किया था उसने ये कहा था कि अगर अर्थ को लेकर यहाँ पर दो पोल्स लगा दिए जाए और उनके ऊपर दो स्फीयर लगा दिए जाए जिनके रेडियस 1 मीटर है, इसके ऊपर एक कूलम चार्ज डाल दिया, इसके ऊपर एक कूलम चार्ज डाल दिया जाए, तो इन दोनों के बीच का जो रिपल्शन है that is enough to tear apart Earth। इतना फोर्स ऑफ रिपल्शन एक एक कूलम में 1 मीटर दूर पर। यहाँ पे we are going to have something around 100 coulombs and that too in a small value like this। एक मोल सोडियम क्लोराइड होता है कितना, 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम का इतना कूलम चार्ज डाल देंगे then it actually is going to rip apart। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं 1,000। इस वजह से किसी भी केस में कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ओवरऑल चार्ज नहीं हो सकता। ना अगर हम यहाँ पे सोडियम आयन की बात कर रहे हैं कि सोडियम आयन हमारे पास है, सोडियम आयन अट्रैक्ट्स द क्लोराइड आयंस अराउंड इट, then in that case sodium ion is going to attract the chloride ion from all directions. How many chloride ions are going to get attached to sodium ion is going to depend only on their relative sizes. Relative sizes around कितने हैं, बस number would be different, but arrangement sizes पे depend करेगा। Overall the system has to be neutral। तो यहाँ पर ये यहाँ पर भी अटैच होगा क्लोराइड आयन, यहाँ पर भी अटैच होगा, यहाँ पर भी अटैच होगा, यहाँ भी अटैच होगा, आगे भी अटैच होगा, पीछे भी अटैच होगा, ठीक है। So I can say the ionic bond is non-directional, ठीक है। सुनो पहले, any ion attracts or repels all the ions around it, irrespective of the direction. The number of oppositely charged ions that surround a given ion depends on their relative size. It has absolutely nothing to do with the direction of the electron pairs present. यानी कि इस डायरेक्शन में आ सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं। This makes ionic bond non-directional. Fine. So that is what we call as non-directional bond. अब जब हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा। Now here it is going to be arranged in this manner। ये सारा का सारा ऐसे अरेंज होता चला जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है। Here it would be positive, here it would be negative, positive। Now it is going to be a 3-dimensional arrangement। एक आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास कभी भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते। यहाँ पे जो भी हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं NaCl लिखता हूँ, these are formula unit। Formula unit definition याद है? A formula unit is the simplest unit which gives a simplest whole number ratio of the atoms of the various elements present in it। So that is what we term as a formula unit। Ionic compounds के अंदर कभी molecule नहीं होते, ionic compounds के अंदर सिर्फ formula units होते हैं। तो यहाँ पर NaCl के अंदर this is going to be a 3-dimensional regular arrangement। The 3-dimensional regular arrangement of particles, और वो particles कुछ भी हो सकते हैं, that is called a lattice।
लैटिस की डेफिनेशन देखो, a three-dimensional regular arrangement, a three-dimensional regular arrangement of the constituent particles, a three-dimensional regular arrangement of the constituent particles, which could be atoms, molecules, or ions. Which could be atoms, molecules, or ions. Is termed a lattice. Is termed a lattice. ठीक है? अब एक और टर्म, one mole lattice. One mole lattice. A lattice which contains one mole of the constituent particles, of the substance. A lattice which contains one mole of the constituent particles of the substance is termed one mole lattice. A molecule is considered a constant particle wherever it can be defined. It can be for the element or a compound. It can be for an element or the compound. Stop. For the substances where molecule cannot be defined. For the substances where the molecule cannot be defined. In case of elements, atom is considered the constituent particle. In case of elements, atom is considered the constituent particle, and in case of compounds, it is the formula unit. In case of compounds, it is the formula unit. अब एक चीज देखो, जब हमने बात की लैटिस की, जब हमने बात की बॉन्ड की, then in that case हमने ये कहा कि जब भी बॉन्ड बनता है, it is because of some attractive forces. और यहाँ पर जब हम आयनिक लैटिस की भी बात करते हैं, आयनिक अरेंजमेंट की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं. जैसे कि ये वाला पॉजिटिव इन सारे के सारे नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला पॉजिटिव इन सारे के सारे पॉजिटिव को रिपेल भी करेगा. So there are going to be attractive forces as well as repulsive forces, but one thing is very clear. Any kind of bond is going to be formed when the attractive forces are going to dominate over repulsive forces. So when the attractive forces dominate over the repulsive forces, then whenever the structure is formed, some energy is bound to be released. जब भी कोई बॉन्ड बनता है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, चाहे वो कितना ही वीक बॉन्ड हो, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो. Whenever a bond is formed, energy is always released out. केवल आयनिक के लिए वाला हर बॉन्ड के,
बोला ना whenever a bond is formed, तो मैंने ये नहीं बोला whenever ionic bond is formed. Is it clear? So whenever a bond is formed, energy is always reduced. हमेशा, ठीक है? इसका मतलब ये कि जब भी आपको कोई bond तोड़ना पड़ेगा, then in that case you have to provide that much energy to break that particular bond. अब अगर ये हम इस लैटिस की बात करें तो लैटिस को भी होल्ड करने वाले कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. अगर हम इस लैटिस को तोड़ना चाहते हैं then in that case हमें उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को देना पड़ेगा, उतनी एनर्जी को देना पड़ेगा. सर इधर जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्शन को कैसे डोमिनेट करते हैं? बहुत सिंपल है. अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करते हैं then in that case the electrostatic forces are all proportional to 1 by r square. ये फोर्सेस के लिए. और अगर मैं एनर्जी की बात करूं it is going to be proportional to 1 by r. फाइन. तो यहाँ पर अगर देखोगे तो पॉजिटिव के पास ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है. तो these are negative charges. अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव ये है. एक सिंपल सी बात देखो, the distance between negative and positive is less than positive and positive. इस वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस हमेशा डोमिनेट करेंगे. और बी वेरी क्लियर, वो हमेशा अरेंज ही इस तरीके से करेगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करें, वरना अरेंज ही नहीं कर पाएगा. Any confusions here? So that is what we have as the electrostatic forces. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास नेचर में आज तक 4 तरह के फोर्सेस हैं जिनको यूज करके हम हर तरह के फोर्सेस, हर तरह की एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं. इसके अंदर एक फोर्स है जो सबसे पहला फोर्स हमारे पास आ जाता है, that is called the gravitational force. ठीक है. दूसरा हमारे पास आता है मैग्नेटिक फोर्स. तीसरा हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है. और चौथा हमारे पास है स्ट्रॉन्ग nuclear. So these are the 4 forces that we talk about. Strong nuclear. Now, these 3 are long range forces. Long range forces का मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होते, कम चाहे कितना ही. ये एक बहुत शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज फोर्स इन द सेंस कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर वर्क करता है. इसकी जो रेंज है वो समथिंग अराउंड 10⁻14 मीटर्स की है. 10⁻14 मीटर से 2 पार्टिकल की डिस्टेंस ज्यादा हुआ और ये फोर्स खत्म, जीरो. तो दिस इज जीरो खत्म है ही नहीं. विद इन 10⁻14 पर एक्ट कर रहा है. लेकिन अगर 10⁻14 से जरा सा भी डिस्टेंस हो गया, इनफैक्ट 10⁻15 बोला जाता है, 10⁻14 हम दे लेते हैं, 10 गुना लेते हैं, उसके बियॉन्ड अगर जरा सा भी डिस्टेंस ज्यादा हुआ, ये जीरो होता है, बिल्कुल जीरो है ही नहीं. इसकी इस फोर्स की, हां, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स नहीं है. सर बट है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर जब एक्ट करता है तो जो मैंने आपको ये नहीं बताया कि इस फोर्स की नेचर क्या है. मैंने ये नहीं बताया फोर्स है क्या. मैंने सिर्फ ये बताया कि ऐसा फोर्स है. ओके, अब एक और we have the gravitational force. अगर आप कंपेयर करना चाहें, अगर से हमारे पास एक 2 प्रोटॉन है, ठीक है, and we keep the 2 protons at a distance of 1 angstrom. 2 protons at a distance of 1 angstrom. प्रोटॉन का मास कितना होता है? तो एक प्रोटॉन का मास है 1.67 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम. दूसरे प्रोटॉन का मास भी 1.67 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम है. ठीक है. और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 6.67 into 10 to the power minus 11. ठीक है. And the distance between them is 10 raised to power minus 10 meters. ठीक है. So
Could you give an idea about what would be the gravitational force acting between them? कितना? Somewhere around 45. 45. There is the minus 25. 45. अगर मैं सिर्फ पावर्स की बात करूँ, यहाँ 16 से करके 2.56 कर दो, 2.56 को अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो it would come out to be something like 20. इस तीनों का प्रोडक्ट लेकर हम 20 मान सकते हैं, ठीक है? So it is going to be something around 20 into 10 raised to power minus 27 minus 54 minus 11 65 और ये minus 20 है minus 45. This would be the kind of the force between the two. Okay. Now let us have an idea about one thing more. That is, what kind of a repulsive force, electrostatic repulsive force, is going to be between the two protons. Clear? वहाँ पे अगर हम कंपैरिजन लेके चलते हैं, then in that case it is going to be, अच्छा, electrostatic constant is 9 into 10 raised to power 9. ठीक है? Charge of a proton is 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb. ठीक है? दूसरे प्रोटॉन का भी चार्ज है 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb. And the distance again is going to be 10 raised to power minus 10 raised to power 2. Clear? यही आएगा ना? अब अगर हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे minus 19 minus 38 minus 38 में से 9 गए minus 27 minus 27 में से 20 गए. So this is minus 7 और ये 9 into 1.6 into 1.6 I think इसको हम फिर से 20 बना सकते हैं. So it is 20 into 10 raised to power minus 7 Newton. So this is the attractive force, the repulsive force between the two protons. अब हम सीधा कंपैरिजन ले, बिल्कुल सीधा, यहाँ पर कोई अप्रोक्सीमेशन देने की जरूरत नहीं पड़ रही, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही. We find that the electrostatic repulsive force between the two protons is 10 raised to power 38 times the gravitational force. Any approximation here? सामने सीधा कैलकुलेशन. तो अभी सीधी बात ये है कि अगर मैं दो एटम्स की बात करता हूँ, दो मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, then in that case very obviously the gravitational force will not be talked about. Am I clear? We will never talk about the gravitational force between the two chemical species. जितने भी केमिकल बॉन्ड्स हैं, चाहे वो वीक है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, चाहे कैसे भी केमिकल बॉन्ड्स हैं, they are all electrostatic in origin. They are due to the presence of charge separation. सारे bonds, no exceptions. All the chemical bonds, whether weak or strong, are all electrostatic in origin. बताना पड़ेगा उसको, हर चीज देखो, जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं then in that case nothing is taken like ऐसा मान लेते हैं नहीं, you will define it in a way और उसी डेफिनेशन के साथ you will stick to it, whether it's wrong or right doesn't make a difference. आपने एक डेफिनेशन दे दी, you have to stick to it. Fine? ठीक है? तो ये हमने बॉन्ड की बात की, हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात की, हमने एनर्जी की बात की. Now अब हमने एक लैटिस की बात की.
जब एक मोल लैटिस बनता है, जब भी कोई लैटिस बनता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अगर मुझे उस लैटिस को ब्रेक करना है, then that energy needs to be provided. The energy that I must provide, and very obviously it will always be provided, it will never be released out. The energy that must be provided to break a 1 mole lattice, not 1 mole of a lattice, break a 1 mole lattice into its constituent particles. Into its constituent particles. Constituent particles will be ions in case of ionic compound. Constituent particles are going to be molecules in case where the molecules can be defined. Constituent particles are going to be atoms for all other cases. So the energy that is required to break this 1 mole lattice into its constituent particles, that is atoms, molecules or ions, in gaseous state is termed the lattice energy. Clear? ऐसा नहीं रहेगा ना, सारे आयंस इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। NaCl नहीं, Na+ और Cl- आयन सेपरेटली मूव करेंगे। गैस का मतलब ये है कि their species are not going to be attracted to each other, they are not going to influence each other, they are moving absolutely independent of each other. That is what the gas is. Lattice था, lattice के अंदर बहुत attractive force है। मुझे इसके थर्मल मोशन को इतना इंक्रीज करना है कि attractive forces को ओवरकम कर जाए, तो मुझे उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना इसको। That energy that I need to provide is called the lattice energy. ठीक है? ठीक है? The minimum energy, और minimum energy नहीं, हम इसको lattice enthalpy define कर देते हैं। तो जब lattice enthalpy define करेंगे तो हम ये लिखेंगे the energy change when 1 mole lattice is converted to its constituent particles. When 1 mole lattice is converted to its constituent particles, that is atoms, molecules or ions in gaseous state, atoms, molecules or ions in gaseous state is termed lattice energy. Is termed lattice energy. Full stop. This energy is always absorbed. This energy is always absorbed. अब एक बात देखो, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस होता है ब्रेकिंग, एक होता है मेल्टिंग, एक होता है बॉइलिंग। In all these processes, don't you think you are going to break the attractive forces between the constant particles? And in a way, you will be breaking the lattice. चाहे आप मेल्ट करें, चाहे बॉइल करें, चाहे आप उसको हथौड़ी मार के तोड़ें, आप हर केस में लैटिस को तोड़ रहे हो। तो एक बहुत ही जनरल सी बात है, देखो जहां भी वर्ड आता है ना कि generalization are always wrong, including this one. तो जनरलाइजेशन जब भी किया ना, जनरली का मतलब होता है ऐसा कोई ना कोई एक्सेप्शन है। तो इसलिए यहाँ पे भी एक जनरलाइजेशन है, इसका भी एक्सेप्शन है बताऊंगा। वो ये कि जहां कहीं भी हम ये देखते हैं कि लैटिस एनर्जी ज्यादा होती चली जा रही है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम सेफली बोल सकते हैं कि इस सब्सटेंस की हार्डनेस, इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और इस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये बात समझ में आई? लैटिस का मतलब ये है, लैटिस का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मान लीजिए मुझे हथौड़ी मारी किसी चीज को तोड़ना है तो उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना है।
अगर मुझे उसको मेल्ट करना है तो मेल्ट करने का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बट द एवरेज डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, बोथ आर मेल्टिंग। बॉइलिंग का मतलब ये है कि द पार्टिकल्स आर मूविंग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो इन तीनों ही केस में मुझे अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ना पड़ा था, किसी केस में कम तोड़ना पड़ा, किसी केस में ज्यादा तोड़ना पड़ा, किसी में सब बहुत ज्यादा तोड़ना पड़ा, पर तोड़ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेस को पड़ा। तो किसी चीज की हार्डनेस इस बात पर डिपेंड नहीं कर जाएगी कि अट्रैक्टिव फोर्स थे कितने। अट्रैक्टिव फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे उसकी हार्डनेस उतनी ज्यादा होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे उसको मेल्ट करना उतना मुश्किल होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे उसको बॉयल करना उतना मुश्किल होगा। इतना समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? इस स्टेज पे तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना। हाँ, the energy change when it is converted to this from this state to this state, यहाँ तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चेंज हुआ उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। बताओ तो हार्ड वो मतलब समझ में आ गया? So in theory of vaporization जो मैं बात वो यही था कि लैटिस हर चीज में एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन नहीं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई कहता है कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज द लैटिस एंथैल्पी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेपराइजेशन, वाटर का वेपराइजेशन एनर्जी कुछ और है। क्लियर? मेटल के केस में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी वुड बी द सेम। तो मेटल के केस में सीधे सीधे लिख देता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दैट द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, लैटिस एंथैल्पी, ऑल थ्री आर द सेम। तो वाटर के केस में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन थोड़ी होगा लैटिस। आइडियली यस है, आइडियली यस। तो 100 डिग्री के बाद 100 डिग्री के बाद क्या आप आइस को वैक्यूम में कर दो, एनर्जी तो फिर भी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी आइस को, 1 मोल आइस को टू कन्वर्ट इनटू स्टीम वेपर्स, इसको भी बता रहा हूं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नाउ ये हमने लैटिस एंथैल्पी की बात की, फाइन। तो जैसे जैसे लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हार्डनेस दे इंक्रीज। ठीक है, ओके। अब एक और बात समझो, जब भी किसी चीज को तोड़ा जाता है, मेल्ट किया जाता है या बॉयल किया जाता है, तो बी वेरी क्लियर, द फर्स्ट बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन आर द वीकेस्ट बॉन्ड्स। The first bond to be broken are the weakest bond, and in general, the lattice enthalpy is decided by the weakest bonds. तो जो भी पूरे के पूरे सिस्टम है, पूरे के पूरे अरेंजमेंट में सबसे वीक बॉन्ड होते हैं, वो डिसाइड करते हैं लैटिस एंथैल्पी के लिए, वो डिसाइड करते हैं हार्डनेस के लिए, वो डिसाइड करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। हमारा क्लियर है? जो स्ट्रक्चर होता है एनी स्केल कॉन्स्टिट्यूट स्पेस के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो अलग फोर्सेस कैसे होंगे, अलग फोर्सेस भी मैंने क्या व्हाट डिड आई से? सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगी यहां पे सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड है, बॉन्ड तो ये बॉन्ड कौन सा है? प्लस और माइनस की कोई और बॉन्ड है? नहीं सर। जब कोई और बॉन्ड नहीं है, एक ही बॉन्ड है, तो वही वीकेस्ट है, वही स्ट्रॉन्गेस्ट है। वही वीकेस्ट और वही स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वही लैटिस एनर्जी डिसाइड करेगा। प्रॉब्लम क्या है सर? वो सब में नहीं होगा। क्या सर? मैंने कहा वीकेस्ट बॉन्ड, अगर एक ही बॉन्ड है तो वही वीकेस्ट है, प्रॉब्लम क्या है? कोई कंफ्यूजन इस बारे में? जैसे कि उसने ये पॉइंट आउट किया है, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। सोडियम क्लोराइड के अंदर पूरे के पूरे अरेंजमेंट में सिर्फ एक ही अट्रैक्टिव फोर्स है, and that is the attractive force between the positive and the negative. अगर तुम्हें सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करना है, तो तुम्हें उस सोडियम क्लोराइड के पॉजिटिव और नेगेटिव के फोर्स को ही ब्रेक करना पड़ेगा। चाहे मेल्ट करना है तो भी वही तोड़ना है, जब भी उसको हार्ड उसको थोड़ी मार के तोड़ना तो भी वही फोर्स तोड़ना है, जब भी आप उसको बॉयल करना तो भी वही फोर्स तोड़ना है। दिस फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो इस वजह से, क्योंकि इस केस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है,
sodium chloride has a high melting point, sodium chloride has a high boiling point, and sodium chloride is hard. मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर किसी को ये शक है कि सोडियम क्लोराइड हार्ड है या नहीं, तो घर जाकर सोडियम क्लोराइड का बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेना और अपना चश्मा लेना, अपने डैड का चश्मा लेना, दीदी का चश्मा लेना, किसी का भी जिसका भी चश्मा मिल जाए, जो भी वो पहनते हैं, वो लेकर उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड हल्का सा रखना और रख के अच्छी तरह ऐसे रगड़ना। जैसे ही आप इसको अच्छी तरह रगड़ोगे आपके गाल पे निशान पड़ जाएगा। नहीं, गाल पे निशान पड़ेगा ना, क्योंकि जब किसी का चश्मा खराब करोगे तो पड़ेगा नहीं कसके। और फिर कभी नहीं बोलोगे सोडियम क्लोराइड हार्ड है। बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, तो सोडियम क्लोराइड पाउडर फॉर्म में मिलता है आपको। तोड़ते हैं सर, तो व्हाट इज द एज स्टेप है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ यूज करना। बिल्कुल सही बात है। चलो काम सर आप सुनो बात, कुछ छोटी-छोटी बातें सुनो, ठीक है। अब एक सवाल तो ये है कि सोडियम क्लोराइड लैटिस समझ में आ गई, लैटिस एनर्जी समझ में आ गई, सोडियम क्लोराइड का हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस ज्यादा क्यों होती है ये समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके आगे अगर मैं डिफाइन करता हूं तो एक वर्ड आता है जिसे बोला जाता है ब्रिटल, वर्ड ब्रिटल। तो पहले तो ये मतलब समझते हैं ब्रिटल का मतलब क्या होता है। Brittle is a substance which when struck with a hammer does not create a dent, it simply shatters. That is called brittle. दूसरे तरीके से ये बोल सकते हो कि उस सब्सटेंस के अंदर आप कील लेके उसको कील नहीं ठोक सकते। तो जिस सब्सटेंस में आप कील नहीं ठोक सकते, ड्रिल करने की बात नहीं कर रहा, जिसमें आप कील ठोक नहीं सकते, जिसके अंदर आप हैमर मारते तो उसमें डेंट नहीं पड़ता, या तो उसमें कुछ नहीं होता या वो टूटता है, उस सब्सटेंस को कहा जाता है ब्रिटल। बहुत सारे सब्सटेंसेस जो ब्रिटल हैं या नहीं हैं, लेकिन जब हम आयनिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो आयनिक सब्सटेंस एक ऐसी कैटेगरी है कि आयनिक सब्सटेंस में हर सब्सटेंस ब्रिटल है। इट इज हार्ड बट इट इज ब्रिटल, बट इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, बहुत छोटा सा रीजन जो सामने बोर्ड पे बना हुआ है। वो रीजन क्या है, अगर मान लीजिए मैंने इसको यहां हथौड़ी से स्ट्राइक किया, जैसे मैं इसको हथौड़ी से स्ट्राइक करता हूं, यहां पे सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। जब हथौड़ी पड़ती है देन दैट केस या तो ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, पर अगर हथौड़ी का जो स्ट्राइक है वो इतना स्ट्रांग है कि ये पार्टिकल मूव कर जाएं, देन ये नेगेटिव हल्का सा भी शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव के सामने आ जाए। And the very forces which are holding it together now are going to shatter it. Clear? So that is why all the ionic substances are brittle, no exceptions. They are hard. तो अगर ना जैसे कोई किसी आयनिक कंपाउंड में जीरो पॉजिटिव चार्ज है तो अभी बोला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बट तो ऐसे सीधे है शॉर्ट है तो फिर नहीं, एक बार आपने हथौड़ी मारी तो जिस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू आपको जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो वहीं क्रैश हो जाता है। ऐसा आयनिक सब्सटेंस की एक और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, that is they are good conductors of heat but they are bad conductors of electricity. Ionic substances are good conductors of heat but they are bad conductors of electricity. और इसका एक बहुत मजेदार रीजन है, वो रीजन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट का जो कंडक्शन होता है उसका तरीका डिफरेंट है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है when some particle moves carrying the charge. आयनिक सब्सटेंस के अंदर आयंस हैं पर ये रिजिड है, ये मूव नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते इसलिए सॉलिड आयनिक सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते।
मेल्ट कर दो, पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दो। सॉल्यूशन में कर दो, पानी में डाल दो, आयन सेपरेट हो जाएंगे, कंडक्ट करेंगे। और ये आइडेंटिफाइंग फीचर है आयनिक कंपाउंड्स का। A substance which does not conduct electricity in the solid state but conducts electricity in the molten state. We are not talking about solution. It's called the ionic substance. ये characteristic है ionic substance की identifying characteristic. सर आपने कहा कि हल्का सा भी मूव करेगा तो उस पे क्रैक आ जाता है सर, बट अगर आप हीट करते हैं तो वो वाइब्रेट से करते हैं, चाहे वो वाइब्रेट करते हैं तो सारे के सारे वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। हीट की दिक्कत है, अभी मैंने बताया हीट क्या है। हीट में क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको हीट देता हूँ तो ये पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगी, इस वाइब्रेशन के साथ ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेशन थ्रूआउट द लैटिस मूव करती चली जाएगी, तो सारे के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो दैट इज हाउ जहां पर भी लैटिस होता है, थोरो अरेंजमेंट है, दैट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। And in fact, diamond is used in tips of precision thermometers. लैटिस सिर्फ लैटिस होने से मतलब नहीं है, लैटिस की अरेंजमेंट भी चाहिए। जैसे अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्रेफाइट की प्रॉब्लम क्या है? ग्रेफाइट के अंदर लेयर स्ट्रक्चर है और एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में वीक फोर्स है, तो इस लेयर की वाइब्रेशन इस लेयर तक मूव नहीं करती। इस वजह से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड के अंदर कोई पार्टिकल मूव करने वाला नहीं जो चार्ज कैरी कर सके, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डायमंड हीट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? तो ये हमने इसके लैटिस की बात की, हमने ये समझा कि ये ब्रिटल क्यों होता है, ये हाई मेल्टिंग क्यों है, ये नॉन कंडक्टर क्यों है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों है, एनी कंफ्यूजन? तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस की बात की। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये हमारे पास आयनिक सब्सटेंसेस के कैरेक्टरिस्टिक है। अब आयनिक सब्सटेंस समझने के बाद नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड मेटल्स। मेटलिक बॉन्डिंग एक इंट्रोडक्शन, वी आर नॉट गोइंग टू गो इन अ वेरी ग्रेट डिटेल बट वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट एन इंट्रोडक्शन। डिटेल की बात हम बाद में करेंगे। जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज है। मेटल्स आर दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर। एक बात का ध्यान रखना कि आप कई बार बोलते हो कि सर क्या हर मेटल में शाइन होती है, and then you just keep on giving the names. So क्या सोडियम शाइन करता है, क्या पोटेशियम शाइन करेगा, क्या आयरन में शाइन होती है, क्या लेड में शाइन होती है, और पता नहीं किस किस के नाम लेते थे। तो बट वेरी क्लियर, one thing is very simple statement. Every metal has a shine. Every, no exception. This is called a metallic luster. मेटलिक लस्टर तुमने देखा तो होगा ना, मेटल का लस्टर होता है, मेटल की एक चमक होती है, कई ब्लैकिश चमक होती है। तुमने अगर लेड देखा हो तो लेड के अंदर भी चमक होती है। अगर तुम पेंसिल को लेके ऐसे रगड़ते हो तो पेंसिल के अंदर एक शाइन आती है, वो मेटलिक शाइन है, डार्क शाइन है बट है शाइन। ठीक है, ऐसी चीज जिसमें आपकी शक्ल दिख सके चाहे वो कितना ही डार्क है, तो ग्रेफाइट की शाइन है, वो भी मेटलिक शाइन है। ग्रेफाइट इज अ मेटलिक अरेंजमेंट। ओके, लेड की शाइन बिल्कुल उस तरीके की है, इसलिए उसको पेंसिल लेड बोलते हैं, उसमें लेड है नहीं। ओके, आयोडीन में भी एक लस्टर है, आयोडीन का भी मेटलिक लस्टर है। जिस किसी का भी अरेंजमेंट, जिस किसी का भी लैटिस मेटल जैसा हो जाएगा, मेटल की कोई सी कैरेक्टरिस्टिक आएगी, उसमें सबसे पहली चीज जो आएगी मेटलिक कैरेक्टर, वो है लस्टर। आयरन की अगर बात कर लोगे तो सर आयरन कितना डल होता है, तो ठीक है आयरन का डल होता है, पहले तो तोड़ के देखो उसके अंदर देखो। मुझे नहीं पता आपने सोडियम कभी देखा ना हो या देखा हो, तो सोडियम एक येलोइश कलर का डल सा मेटल दिखता है, लेकिन अगर उसको एक ट्यूब में डाल के हीट कर दो
बिल्कुल शाइनी ग्लोब्यूल बन जाता है, शाइनी मेटलिक, सिल्वरी शाइनी, बढ़िया से मरकरी का शाइन से पता लगेगा। सो इट इज शाइनी सब्सटेंस, ठीक है। So that is what we talk about the metallic cluster. So ये सबसे dominant characteristic. Further, every metal is a good conductor of heat and electricity. Heat का क्योंकि उसका एक close packed arrangement होता है, electricity का क्योंकि उसमें electrons mobile होते हैं. The worst conductor of electricity amongst metal is lead. Okay, अच्छा, lead के सारे बड़ी comical बात हुई थी मेरे साथ कभी। एक बार मैं ऐसी क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने उनसे पूछा, स्टूडेंट को बताया कि देखो lead is the worst conductor of electricity amongst metal, but still it is much better than any other non-metal. ठीक है, वो ग्रेफाइट से अच्छा करता है। तो मैंने बता दिया, बताने के बाद 2 दिन के बाद एक स्टूडेंट पूरा गुस्से में आया मेरे पास, सर आप हमें बताए थे कि lead अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ हमने बताया कि हम अपने फ्रेंड से 2 शर्त लगा लिया और उसने हमें गलत प्रूफ कर दिया। तो तुमने अपने फ्रेंड से शर्त लगा दी कि lead गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और उसने तुम्हें गलत प्रूफ कर दिया। कहता हाँ, उसने lead लिया, स्विच में डाला, स्विच ऑन कर दिया, करंट ही नहीं लगा। पहले एक बार बता, तुमको lead मिला था? मुझे नहीं पता, तुम लेड लेके तो तुमने देखा है कभी लेड? बड़ा हो हां नाम नहीं देखा। लेड पाइप्स थियोरेटिकली होती है बेटा, इंडिया में लेड पाइप्स नहीं मिलती। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बेटा तो लेड मिला कहां पे, तो ये बता। कहता है हिंदी में लेड को क्या कहते हैं? शीशा कहते हैं ना। मैंने कहा हां लेड को शीशा कहते हैं। कहता हमने शीशा लिया और शीशा लेके लगा दिया। कहां से मिला? ये जो विंडो में लगता है शीशा। मैंने कहा भाई साहब जो विंडो में लगता है उसको शीशा कहते हैं, शीशा नहीं। अब किसी को उसको क्या कोई समझाएगा ये शीशा नहीं है, शीशा है। शीशा इज द ग्लास। ग्लास इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्लास इज नॉट अ मेटल। ग्लास इज नॉट lead. जस्ट अंडरस्टैंड कि वो शीशा अलग है, हिंदी में शीशा कहते हैं, शीशा नहीं कहते। ये शीशा होता है, ग्लास इज शीशा। ओके, इसलिए वो शर्ट आ गया। शर्ट क्या लगा रखा है इसमें? शर्ट कौन सी वाली? So that's what we have understood. Metals are all good conductors of electricity. Whether it be the worst, that is the lead. बाकी सारे के सारे और अच्छे कंडक्टर्स। बेस्ट कौन सा? Silver. Silver is the best conductor of electricity. Second number is copper. Third number is aluminum. Gold best conductor नहीं है, तो उसके नीचे aluminium is a good conductor, no doubt. ना तो ये हमारे पास मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है, और साथ ही साथ हमारे पास मेटल की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, मेटल्स आर मैल्लेबल एंड डक्टाइल। मैल्लेबल का मतलब ये है कि अगर आप उसको थोड़ी मारते चले जाओगे देन इन दैट इज मेटल की हाइट कम होती चली जाएगी, उसकी लेंथ और विड्थ बढ़ती चली जाएगी। That is what we call malleable and ductile, where it can be drawn into thin wires. Gold is the most malleable as well as the most ductile element. Malleable, 1 gram of gold can be beaten into a sheet 1 square meter, maybe a little more, and 1 gram of gold can be drawn into a wire 2 kilometers long. So that is what we call as the malleability and ductility of gold. Further, metals are sonorous. Sonorous का मतलब ये है कि अगर मेटल को आप स्ट्राइक करते हैं तो एक टिंकल आती है, एक आवाज आती है, ठीक है? तो metals are sonorous. So ठीक है, तो that's what the characteristics of metals are. क्या? अभी मैंने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताई, रीजन अभी बताओ। अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को देखते हुए there was a proposed structure of metal. Proposed, अभी ये नहीं बोलूंगा सही है या गलत है, लेकिन इस proposed structure से बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती हैं, and that proposed structure is called the electron seat model of the metal.
अब इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ द मेटल में क्या है? They consider something called metallic kernel. A metallic kernel. Metallic kernel is the metal atom from which outermost shell electrons have been removed. यानी कि सोडियम का metallic kernel will be Na+, कैल्शियम का will be Ca2+. So that is what we call as metallic kernel. Outermost electron निकाल दिया, nucleus with core electrons. Outermost को छोड़ के जो electrons होते हैं उनको core electrons कहा जाता है. तो outermost electron निकाल दिया, core electrons with the nucleus is there. That is called the metallic kernel. Okay. तो this metallic kernel के अंदर क्या हुआ? They talked about the metallic kernels being arranged forming a lattice. ये सारे के सारे पॉजिटिव कर्नल्स हैं. ये जरूरी नहीं कि इनके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो, इनके ऊपर मल्टीपल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है. ठीक है. अब जो इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाले हैं, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता. उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता. तो जैसे ही कोई मेटल दूसरे मेटल के पास आता है तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है दूसरे मेटल आयन की तरफ मूव करने की, क्योंकि ये वाला मेटल बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके नहीं रखते हुए, दोनों ही अट्रैक्ट करते हैं. वही बात है ना कि अगर ये स्ट्रांगली इसको होल्ड नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं तो इधर जा रहा हूं, तुझे होल्ड कर सकता है. नहीं. तो बात सिंपल सी ये है कि अगर आप देखो, आप आपका घर है, ठीक है, एवरीडे फूड इज बीइंग कुक्ड. नाउ let us say the food which is being cooked is not up to your taste. Then in this reason, अगर कोई भी फ्रेंड आपको बुलाता है कि यार आज मेरे घर आ जा, then you might accept it very willingly, just thinking that वहाँ अच्छा not necessary. और कई बार ऐसा होता है जो तुम बच्चों की आदत होती है वो ये अपने घर के अलावा सब घर का खाना अच्छा लगता है इन जनरल, ठीक है. और चाहे रोज रोज ना अच्छा लगता हो लेकिन एक दिन तो अच्छा जरूर लगता है. टेस्ट चीज कभी बाहर का खाना भी अच्छा लग सकता है ना. इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने वाला एटम जितना वीक होता चला जाएगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन के दूसरे एटम की तरफ मूव करने की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, चाहे दूसरे का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो या ना हो. इट इज मोर लाइक हाउ स्ट्रांगली इट होल्ड्स. नाउ यहां पर जब मेटलिक कर्नल्स की एक अरेंजमेंट हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे देखो ना, अगर इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो दो मेटलिक कर्नल से अट्रैक्ट हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम हैप्पियर. In the same manner, अब जो कहता है एक से क्यों, दो से क्यों? Why not just keep on moving around in the entire arrangement? So this electron or electrons, they just keep on moving in the entire metallic lattice, forming an electron sea in which metallic kernels seem to be floating. पर ये जो दूसरे के पास है, इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास है, वो दौड़ में पीछे आ रहा है. That's what they move. Okay, and if we talk about electron as a wave, then in that case we can simply consider that the electron is entirely spread. All the electrons are entirely spread. Now, इस तरीके का एक अरेंजमेंट बन जाता है. जब हम इस तरीके के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम अब इस पर्टिकुलर मॉडल के, मुझे नहीं पता ये मॉडल सही है या गलत है, लेकिन इस मॉडल के थ्रू हम सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे हैं. सिंपल सी बात है, metallic kernels and एक भी kernel vibrate करता है, then that is going to pass on the vibration to all the metallic kernels and therefore the heat flow is going to be quite fast. पहली चीज. दूसरा, these electrons are mobile. तो जैसे में electric potential लगा हुआ, these electrons are capable of moving through, and when they are moving through, they are capable of conducting electricity. So it's going to be a good conductor. ठीक है. ये जो electrons है, they are spread over entire region. अब यहाँ पे अगर light पड़ती है, तो this electron has capacity to get excited. अब मजेदार बात ये कि ये एक्साइट किसी भी रेंज पर हो सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स नहीं है, and therefore it is going to absorb all the frequencies of light and emit all the frequencies of light, and therefore it is going to give a continuous spectrum, or simply speaking अगर लाइट पड़ती है it is going to be reflected. होता है इसमें होना चाहिए. परफेक्ट नहीं है. परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जीरो से लेकर इंफिनिटी तक. अब जीरो से इंफिनिटी तक कैसे करोगे?
उतना हाई टेम्परेचर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ना, मेल्ट हो जाएगा। और अगर मेल्ट होकर वेपराइज हो गया तो वेपराइज होने के बाद इसका लाइट स्पेक्ट्रा हो जाएगा, फिर ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा। जब तक मेटल सॉलिड ब्लॉक है तब तक वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा देता है, उसके बियॉन्ड। ठीक है, सन के बारे में आपने बोला था। सर मेटल नहीं है, नहीं मेरा सन के बाहर है। ऑलमोस्ट है। हाँ तो सोलर लगा वो एक प्रॉपर्टी से बात करते ओके नाउ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ कोर्स पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूजली हैंडेड। हाँ, इलेक्ट्रॉन लूजली हैंडेड, so therefore it can be easily moved out। ठीक है, So ये कर्नल के इलेक्ट्रॉन है ना, जो सारे निकाल दिए। कर्नल की नहीं, कर्नल अलग है, इलेक्ट्रॉन्स अलग है। एक मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही बना रहे हैं, और मेटलिक कर्नल जो बच गया वो है। ओके, तो ये हमने इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए एक और प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड सोनरस नेचर। अगर मान लीजिए इसको हथौड़ी मारते हैं, then in that case this metal this particular kernel is going to be shifted। अब इंपॉर्टेंट बात है कितना ही मैं शिफ्ट कर लूं पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेयर हमेशा बीच में बना हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन का लेयर बना हुआ है then in that case जब मैं इसको हिट करता हूं तो ये हल्का सा आगे मूव करता है, आगे मूव करेगा, इसकी एनर्जी में चेंज आएगा। It's going to go into a higher energy, it's going to try to come back to the lower energy and then it will start vibrating। अब जब ये वाइब्रेट करेगा तो आसपास एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल पे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे एंड दैट्स कॉल्ड साउंड, एंड दैट इज हाउ मेटल्स बिकम सोनरस। अब बात आती है डक्टाइल और मेलेबिलिटी की। लेट अस से नीचे एक सॉलिड सरफेस लगा दो, यहां पे हथौड़ी मारो, जब हथौड़ी मारोगे तो ये आगे मूव नहीं कर पाएगा, ये ऐसे मूव करेगा। जब ये ऐसे मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है इसके साथ साथ ऐसे मूव करेगा, ये इधर मूव कर जाएगा, ये इधर फ्लो कर जाएगा, आगे वाला आगे फ्लो करेगा, पीछे वाला पीछे फ्लो करेगा, ये बीच में आ जाएगा। क्या होगा, हथौड़ी मारते जाओ, हाइट कम होती जाएगी, विड्थ लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज मेलेबिलिटी। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने मेटल्स की यहाँ पे एक्सप्लेन की। अब हम एक और चीज की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो आई थिंक इस स्ट्रक्चर से क्वाइट ऑब्वियस हो जाने चाहिए। वो ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसका चार्ज, इस मेटलिक कर्नल की चार्ज डेंसिटी जितनी बढ़ती चली जाएगी वो इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश करेगा, या ये कह लो कि इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांग ग्लू बन जाएंगे इनके बीच में, और जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे उतना स्ट्रांग बॉन्डिंग होती चली जाएगी, क्योंकि ग्लू भी ज्यादा होती चली जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि मेटलिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, द मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ depends on the metallic bond strength depends on first the number of electrons contributed towards metallic bonding. Number of electrons contributed towards metallic bonding. ठीक है, अब यहाँ पे एक फनी सिंपल सा एग्जांपल आता है, जैसे हम बात करते हैं alkali metals। Alkali metals are capable of contributing the outermost s electron. Alkaline earth metals they are capable of contributing 2 s electrons. जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये ना सिर्फ बाहर वाला s इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं बल्कि थोड़ा बहुत अंदर वाले d इलेक्ट्रॉन्स को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे जैसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स मेटलिक बॉन्ड इंक्रीज होता है। अगर ट्रेंड देखोगे तो मेटलिक बॉन्ड भी साथ ही साथ इंक्रीज होता है। Is it clear? So as the number of electrons being contributed towards the metallic bond formation increase, the melting point, boiling point, hardness, that means the metallic bond strength increases. Electron होगा, atomic number।
चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज कितने बढ़ेगा? क्यों ज्यादा लेफ्ट टू राइट पे तो बढ़ेगा। मेटल्स में हाँ वही पता चलेगा बाद में नाइट्रोजन आ गया, वो भी सर इसी ट्रेडिशनल मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, वो यार मेटल नहीं रहा। इसलिए मैं उतना ही बोलूंगा जितना वैलिड है। इसलिए मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की थी, मैंने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की आगे बात नहीं की। फाइन, ठीक है। दूसरा, द चार्ज डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक कर्नल, द चार्ज डेंसिटी of the metallic kernel as the charge density of the metallic kernel increases, the melting point increases. अब देखो हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं, then in that case what we find is कि लिथियम का साइज सबसे छोटा है, सबसे छोटा है +1 चार्ज, सबसे बड़ा है +1 चार्ज। तो चार्ज डेंसिटी लिथियम आयन की सबसे ज्यादा होगी और सीजियम आयन की सबसे कम। Clear? And according to what I said, लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, सीजियम का सबसे कम। That's a fact. Fine. Okay. The second factor, the charge density of the metallic kernel. As the charge density of the metallic kernel increases, the melting and the boiling point increases. अब एक तीसरा फैक्टर है। आप में से कोई ना कोई ये जरूर पूछना चाहेगा कि सर, why mercury is a liquid? एक obvious question, why mercury is a liquid? देखो यहाँ पे periodic table में बहुत सारे interesting facts हैं, लेकिन कुछ mercury becomes an outstanding fact. Because this is one of the two liquids in the periodic table. Another one is bromine. Now mercury के liquid होने का एक बड़ा मजेदार सा reason है, वो ये कि mercury की ionization energy with a combined effect of the D-block contraction and the lanthanide contraction becomes the highest amongst metals. The ionization energy of mercury is the highest amongst metals. It's 1007 kilojoules per mole. Non-metals की और ज़्यादा, लेकिन वो non-metal है ना। So that is why mercury is not able to contribute the electrons towards metallic bonding effectively. क्योंकि metallic bonding में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ionization energy की वजह से ही जा रहे हैं ना, कम है, तो वो effectively contribute नहीं कर पाता। और जब effectively contribute नहीं कर पाता, then in that case the metallic bond strength becomes extremely low, which makes mercury having a melting point of -38 degrees Celsius and boiling point of 360 degrees Celsius. तो जितने टेम्परेचर में दूसरे मेटल मेल्ट नहीं होते, mercury बॉइल कर जाता है। ठीक है, तो ये हमने मेटलिक बॉन्ड्स की बात की। And very obviously metallic bonds जितने strong होते चले जाएंगे, the hardness, the melting point and the boiling point of metal will be more. Tungsten is amongst the hardest metals, and tungsten is amongst the highest boiling also, highest melting also. In fact, tungsten is the highest melting metal. ठीक है? कोई confusion इस बारे में? तो ये हमने metallic bond की बात की। अब थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड की इंट्रोडक्शन, अब बाकी जो चैप्टर हमें करना है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड ही करना है, तो थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड की इंट्रोडक्शन की बात की जाए। कोवेलेंट सब्सटेंसेस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, तो अभी मैं आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, आप मुझे उन स्टेटमेंट्स को देख के ये बताइएगा, जैसे रीजन असर्शन होता है ना, रीजन असर्शन क्वेश्चन मारना, जस्ट आई एम गिविंग यू 2 स्टेटमेंट्स, you have to just tell me whether the 2 statements are correct, whether that statement explain each other, and so on. बताइए रीजन असर्शन क्या होता है? स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। The first statement is covalent substances generally have
low melting point and low boiling point. And when I say low melting point, I am talking about a melting point lower than 500 degrees Celsius. That is what I refer to as low. ठीक है, 500 डिग्री से कम अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो we call it low melting. ठीक है. Second, covalent bond is a weak bond. Now, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकंड स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करता है, then it is one. अगर दोनों स्टेटमेंट में से दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट का सही रीजन नहीं है, then the answer is 2. अगर पहली स्टेटमेंट सही और दूसरी स्टेटमेंट गलत है तो आंसर इज 3. अगर पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी सही है तो आंसर इज 4. और अगर दोनों स्टेटमेंट गलत है तो आंसर इज 5. तो व्हाट्स द आंसर? एक काम करो, 1 2 3 4 5 में से एक नंबर लिखना ना, अक्कर बकर करके अपनी कॉपी में लिख दो, फिर आप आंसर देंगे. जल्दी करो. The answer is 1 here. Okay. दोनों गलत है. जल्दी लिखो. ऊपर वर्ड जनरली अगर 4 एक्सेप्शन है आउट ऑफ a few billion compounds, I think that can be called as exception. So, how many people say it should be 1? Good. How many say it is 2? आसपास मत देखा कर, अपने ऑप्शन बताया. Okay. How many say it is 3? 3. Okay. How many say it is 4? 5. एक कहा था. 3 किसने कहा था? एक आपने, एक आपने. Okay. Why is it? लग रहा है. जोर से लग रहा है, धीरे से लग रहा है. हाँ भाई. सर फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये तो कभी नहीं पता चल सकता कि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है. फर्स्ट स्टेटमेंट कब तक कैसे पता चल सकता है? तो दूसरी स्टेटमेंट पूछो. मेरा तो ये रीजन था. वैसे पता चले या ना चले, दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट भी तो हो सकती है. उस केस में क्या और 2 आंसर हो जाएगा. तो ये बताओ कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है या सही है, क्योंकि 3 का मतलब है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है. 3 बोलने का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड. मतलब मुझे उल्टा लगा था. मतलब स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है. हाँ, यही है. का मतलब है स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है. Well, okay, the people who have given the answer 1, they might have had an example of water in their mind. Water is a covalent substance. It has a low melting point of 0 degrees Celsius. ठीक है ना? है ना?
इसलिए इसने भी वन आंसर दिया, वन आंसर दिया। देखो मैं रीजन पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर मैं उसी हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा। वाटर सॉलिड, H2O is solid, that is called ice. Heat करते हो, it becomes H2O liquid, that is called water. और heat करते हो, it becomes H2O gaseous, which is called steam. कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है? कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है? नहीं। तो अगर सोचो कोई व्यक्ति आपको आके कहे यार तुम तो बड़े वीक इंसान हो, क्यों मैं वीक क्यों? देख तेरा पड़ोसी पिट रहा, तू बहुत वीक है। पड़ोसी पिट रहा है, मैं वीक कैसे हो गया? नहीं, पड़ोसी पिट रहा, फिर वीक है। अभी तो वही बात है ना, हीट करने में, मेल्ट करने में हमने कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ा ही नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड ठीक है। The answer is third. The statement third is the correct answer. So simple is the reason here. Covalent bond is not a weak bond; it is a very strong bond. In fact, many of the cases it is stronger than the ionic and the metallic bond. बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए I need a temperature of minimum of 2000 degrees Celsius. वाटर के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए I need a temperature of 2000 degrees Celsius. And melting point of sodium chloride is just 810 degrees Celsius. Water heating से decompose नहीं होता। Yeah. और अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूँगा, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बात करता हूँ। Any species, the strongest bond is the bond between carbon and oxygen, carbon monoxide. That is the strongest bond. और अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात करो, सर आप तो बड़े-बड़े तीन बॉन्ड्स लगा रहे हो, तो चलो ठीक है, 3 बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड एक बॉन्ड है, तो ओके, the strongest single bond is the single bond between hydrogen and hydrogen. तो जहाँ पे भी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स की बात आएगी, कोई और बॉन्ड नहीं आता, सारे कोवलेंट, ऊपर से नीचे तक ऐसे घेरा हुआ है कोवलेंट ने सबको। हाईएस्ट मेल्टिंग तो डायमंड ग्रेफाइट कितना मेल्टिंग पॉइंट है? 4200 डिग्री। उसके कंपैरिजन में दूसरा नंबर आता है वो टंगस्टन का 3400 है। सर बट फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। एक्सेप्शन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, बोरॉन, मिट्टी। ग्लास वाला सिलिका नहीं, सिलिका वाला सिलिका, ग्लास इज सिलिकेट। हाँ, सैंड इज नॉट ग्लास। मिट्टी, सिलिका, कोवलेंट स्ट्रक्चर, कोवलेंट बॉन्ड्स। अब प्रॉब्लम ये है कि the lattice energy is decided by the weakest bond. Melting point, boiling point is decided by the weakest bond. And in most of the covalent substances, covalent bond is not the weakest bond. There are other intermolecular forces which are much weaker as compared to the covalent bond. And when we try to melt or boil them, those lattices, those forces, they break. तो बाकी सब में generally valid है. Generally low body. हाँ. कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाँ। कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता। मेल्ट करते हो कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता होगा। नहीं टूटता। समझे? जिस केस में कोवलेंट बॉन्ड इज द वीकेस्ट बॉन्ड, उस केस में मेल्टिंग पॉइंट होगा। जिसमें भी किसमें पूरा बोल स्टेटमेंट सही बोल, पूरी बोलना स्टेटमेंट भाई, गलत स्टेटमेंट देगा, गलत स्टेटमेंट देगा, मतलब कुछ और है, निकल कुछ और रहा है। You have to ask me a question. The compounds which are held together by only covalent bonds, the species which are held together in which the constituent particles are held together by only covalent bonds,
that means to melt or boil them, covalent bonds need to be broken. Will they have a higher melting and boiling point? The answer is yes. सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत ज्यादा क्या, इनफैक्ट हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट इज अमंगस्ट द लोएस्ट। कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं तोड़ना मुझे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना है, वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। समझ आई बात? ठीक है, एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, उसमें कपल्स घूम रहे हैं, बहुत सारे कपल्स घूम रहे हैं इधर से उधर हाथों में हाथ डाले हुए। Now each couple is a molecule. Clear? एक कपल ऐसे निकलता है, ऐसे आया, दोनों ने एक दूसरे को देखा, स्माइल पास की, हेलो किया और आगे बढ़ गए, जान पहचान नहीं है, but because they are couples, they are having a kind of a rapport with each other. Fine. अब अगर एक कपल वहां से निकल के जाएगा तो क्या बाकी सारे कपल उसको पकड़ के खींच लेंगे? They do have an attractive force amongst them because they are all couples. They are comfortable in each other's company, but they are not going to pull them apart. Clear? So the couples can easily move out. उनके बीच में attractive force नहीं है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला आगे कहता है, "ओए, तू उधर जा, तेरी बीवी उधर जाएगी," फिर resist करेगा या नहीं करेगा? But this is the covalent bond they are trying to break. And that is going to be a very strong bond. It's going to be very difficult to break. Yeah. तो अब सोचो। सर वो H2 बेस इनटू H plus H वो कोवलेंट बॉन्ड कहाँ है H plus H? थेरेपी में पढ़ा था ना, रिएक्शन से पढ़े तो H2 बॉन्ड में देख रहा था H plus H तो किसको ब्रेक किया था हमने? H2 गैस H2 गैस को हमने किसमें ब्रेक किया? H plus H में कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक कर रहा था। अरे अच्छा ये कह रहे हैं ना H plus H। यस ये H plus ऊपर कहाँ से आ गया? अब बोलेंगे जरूर ना सर into 2H atoms। हाँ यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये बहुत मुश्किल है, समझ आई बात? Clear? So now I believe this is very much clear that this first statement is correct. They do have generally low melting and boiling point because in most of the covalent bonds, covalent substances, we don't have to break the covalent bond to melt or boil. And in whichever case we have to melt, we have to break the covalent bonds to melt or boil them. They are melting and boiling points. Yeah. Wait out. तो ये हमने कोवलेंट सब्सटेंस लिखा। इनफैक्ट कोवलेंट सब्सटेंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कोवलेंट substance, two categories. One is called molecular substances and other one is called covalent network solids. Molecular substances सारे organic compound, all organic compound. Molecular substances. All the substances which exist as gases or liquids at room temperature, except mercury. They are molecular substances. Okay? Now, covalent network solids. That purified silica, silicon, बोरॉन, ये है कोवलेंट सॉलिड्स। सिलिकॉन कार्बाइड, फाइन। तो ये हमने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ली अबाउट द वेरियस स्ट्रक्चर्स, अबाउट द वेरियस बॉन्ड्स। क्या ये वेरी हाई मेल्टिंग है, वो लो मेल्टिंग है। इसके अंदर पूरा का पूरा लैटिस कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। उसमें दो तरह के बॉन्ड्स है, एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स है, एक कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स टूट जाएंगे, इसलिए लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट।
थोड़े बहुत समझ में आए, एक बात मुझे कंफर्म समझ ली, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग of electrons. Covalent bonds are formed by sharing of electrons. When the electrons are influenced by more than one nucleus, they form covalent bonds. Is it clear? अब कुछ बहुत सिंपल सी टर्म्स, जैसे कि पहली बहुत सिंपल सी टर्म है which is called the electron pair. Heard of the word electron pair? Define किया? कब किया? Okay. तो मैं सिंपल सा बता देता हूँ. Electron pair. Two electrons present in the same orbital with opposite spin constitute electron pair. ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है, 4 electrons. The electrons present in any shell other than the outermost are called 4 electrons. These electrons do not take part in any chemical reaction. They are called 4 electrons. Okay? Then we have a term called valence electrons. The electrons which are present in the outermost shell, that is, the electrons which take part in chemical reactions, are termed valence electrons. ठीक है? अब एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं लोन पेयर. The valence shell electron pair, the valence shell electron pair, under the influence, the valence shell electron pair under the influence of only one nucleus, under the influence of only one nucleus, is termed lone pair. एक और डेफिनेशन, बॉन्ड पेयर. Bond pair. The electron pair under the influence of two or more nuclei. The electron pair under the influence of two or more nuclei is termed bond pair. बाकी करते हैं ब्रेक के बाद.